Assalamu alaikum. My name is Shani Zaira and I am a student of IOBM. I, along with my team member, are making a documentary on Park Qatar. So let's get started. Let me just give you a small introduction of what insurance is. So, insurance in simple language is it is a legal agreement between an insurer, means the insurance company, and the insured, any individual or corporate body, in which the insurance company gives financial protection to the insured, means the individual or corporate, that in case of any loss or any kind of accident or anything, the insurance company provides coverage. As you are now aware of what insurance is, I will quickly cover two sections of Insurance Act, which are Section 5 and Section 6. Section 5 tells us about the persons who are eligible to transact insurance business. So, number one, it should be a public company. Number two, it should be any body corporate incorporated under the law of Pakistan. It shouldn't be any private company or not even any subsidiary of a private company. Number two, any foreign insurance company has to transfer their business to a new public company within the 6 months of commencement date. Let's move on to section 6. It tells us about the registration of insurance company. No one in Pakistan can start its insurance business without obtaining the certificate of registration from the commission. Number two, all the existing insurance companies in Pakistan have the certificate valid for a specified period or up to 1 year from the commencement date. We have interviewed Sir Imran Lakhani from Park Qatar, and we've asked a series of questions from him to let us know about how an insurance company works. My name is Imran Lakhani, and I am here in Pakata Takaful, associated with since last 2 years. I'm working in as the head of pricing, underwriting, and policy admin department. Uh, Previously, I worked with IGL Life, and there I won the underwriting championship award from the multinational pooling Maxis GBN. Uh, I looked after here the group policies, group life, group health, and the asset management company. ओके, सो बेसिकली आप लाइफ वाला पार्ट देखते हैं, नॉट द जनरल जो मतलब व्हीकल्स और इस तरीके का होता है. यहाँ पर लाइफ वाला पार्ट देखते हैं, बट क्योंकि सिस्टर कंसर्न कंपनी, तो एज अ ग्रुप हम सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, चलें. ओके, नाइस. अच्छा, आप थोड़ा सा पाक कतर के बारे में बता सकते हैं, मतलब हाउ डज इट वर्क एज इट्स इस्लामिक, मतलब वो तकाफुल की साइड पे है, तो मतलब उसमें कैसे फर्क है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी में, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो पाक कतर लाइक राइट नाउ ऑफर कर रहा है. अच्छा, देखिए, इंश्योरेंस और तकाफुल में फ़र्क बेसिकली प्रोसेसेस का है, ठीक है, और मेथडोलॉजी का है, ठीक है. इंश्योरेंस में हर पॉलिसी के अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है. तकाफुल में एक पूल क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, 100 रुपीज़ की एक पॉलिसी है, ठीक है. उसके दो फंड्स होते हैं, ठीक है. एक होता है शेयर होल्डर फंड, जिसको हम SHF कहते हैं, या OSF कह लें, ऑपरेटर सब फंड, जो भी नाम. और एक होता है PTF, जो कहता है वक्फ फंड. फॉर एग्जांपल, 100 रुपीज़ की पॉलिसी है, उसमें 10% SHF है और 90% वक्फ है. अब वक्फ जो है वो पूलिंग कर रहा होता है, जितनी कंपनीज उसके अंदर आती जाएगी वो पूल बनता रहेगा, उस पूल में ऐड अप होते रहेंगे. अब वो पूल जो होता है वक्फ हो जाता है, ठीक है. वक्फ मींस अल्लाह की राह में वक्फ हो जाता है, ठीक है. अब उससे सिर्फ और सिर्फ क्लेम्स निकल सकते हैं, कोई और बेनिफिट हम उससे अवेल नहीं कर सकते. अच्छा, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं, एम्प्लॉय या एजेंट के कमीशंस है, वो कहाँ से दें? तो वो जो हमने 10 रुपीज़ का SHF रखा है ना, हर पॉलिसी में अलग-अलग होता है SHF, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ. उससे हम कंपनी के एक्सपेंसेस निकालते हैं, कंपनी के सैलरीज़ निकालते हैं, एजेंट के कमीशंस निकालते हैं, ये वहाँ से पे होता है.
तो चूंकि हम वक्फ कर रहे हैं और एक पूल हो रहा है, उस पूल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्लेम्स, तो ये कॉन्सेप्ट है तकाफुल का। इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, हर पॉलिसी एक इंडिविजुअल है। ये मोटा मोटा फर्क है। ठीक है, ओके, गॉट इट। अच्छा, अब आप कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता दें जो मतलब पाक तक कतर जो है ना वो ऑफर करता है, मतलब कौन सी इंश्योरेंसेज वो ऑफर करता है। देखें, सारी अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो मेन जो प्रोडक्ट्स है वो डिवाइड होते हैं दो में। एक होता है ग्रुप का प्रोडक्ट और एक होता है इंडिविजुअल का प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रुप का प्रोडक्ट होता है जिसमें ग्रुप कंपनीज आ जाती है। ठीक है, जितनी भी, जैसे IOBM CBM है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। उनकी इंश्योरेंस हो जाती है, तो वो ग्रुप बन जाता है CBM। ठीक है। या बाकी एंग्रो है, बड़े बड़े नाम, ठीक है, जैसे PTCL है। ठीक है। तो जोंग्स वगैरह है, ये सारे ग्रुप कंपनीज हैं। ठीक है। तो इन ग्रुप्स के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस लेता है या तकाफुल लेता है। ठीक है, क्योंकि वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट उनको कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाए प्रेमिसेस में, तो आप लायबल हैं उसको पे करने के लिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रोविंस वाइज। ठीक है, जैसे कराची का अलग है, लाहौर का अलग है। ठीक है, सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है। तो उसको मेक श्योर करने के लिए एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है। तो ये ग्रुप का पार्ट हो गया, इसमें ग्रुप लाइफ भी आता है, ग्रुप हेल्थ भी आ जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल में। हम इंडिविजुअल में हर बंदा, जैसे आप और मैं अलग अलग इंडिविजुअल है, अभी हम कहीं से एसोसिएट नहीं है, तो हम चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो अपनी लाइफ कवरेज की पॉलिसी ले सकते हैं, हम चाहें तो अपनी हेल्थ की पॉलिसी ले सकते हैं। तो उसके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। ये हो गई लाइफ साइकिल की बात। अब हम आ जाते हैं जनरल में। जनरल में भी ऐसे ही होता है। ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ी ऑफर की हुई है, ठीक है, तो उसकी इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है। और वही इंडिविजुअल में आ जाएंगे, तो जैसे मैंने अपनी खुद गाड़ी खरीदी है, तो मैं अपनी ही गाड़ी की इंश्योरेंस कराऊंगा, या अपने घर की इंश्योरेंस कराऊंगा, या अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराऊंगा। तो मेन जितनी भी इंश्योरेंस है वो डिवाइड होती है दो में, ग्रुप में या इंडिविजुअल में। ग्रुप्स में एक साथ बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो उसका रेट कम होता है। इंडिविजुअल में एक बंदा एक वक्त में आ रहा होता है, तो उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है। अब क्या ऑफर करता है पाक कतर, वो एक अलग है। पाक कतर बहुत सारे प्लान्स ऑफर करता है, जैसे मैंने ग्रुप लाइफ बताया, ग्रुप हेल्थ बताया, जनरल प्रोडक्ट्स बताया। इसी तरीके से इंडिविजुअल में इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, यूनिट लिंक प्लान्स है। और रिसेंटली पाक कतर ने अपनी नई कंपनी खोली, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, जिसके थ्रू हम जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं कि जिसमें इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, या ग्रुप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट ग्रुप ऑफर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ। उसके अगेंस्ट में हम कवरेज भी देते हैं, रिटर्न भी मिल रहा होता है। तो ये हमने न्यूली लॉन्च किया है प्लान को। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अब हम जो है ना वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो मरियम इज गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो आर विच आर बेसिकली डिजाइंड फॉर यू। उसके बाद हम फिर एक्चुअली वाले व्हेन ही इज अवेलेबल फिर हम उनके क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे, ठीक है। सो आई हैंड ओवर टू मरियम ताकि वो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। Okay, so is there any situation where you had to make an unpopular pricing decision with some stakeholders? How do you manage this situation? अच्छा, बेसिकली वी कैन इवेलुएट द प्राइसिंग बेस्ड ऑन द रिस्क। ठीक है, उसकी कैटेगरीज होती है, रिस्क की कैटेगरीज होती है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, सो रिस्क लेवल इज वेरी लो। ठीक है, बैक ऑफिस स्टाफ, रिस्क लेवल इज वेरी लो। अ पर्सन हु इज वर्किंग इन फैक्ट्री, तो उसका मॉडरेट होता है। और अ पर्सन हु इज वर्किंग इन, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक कंपनी, उसने बाइक रोज चलानी है, रोज जाना है बाइक पे, तो उसका रिस्क लेवल हाई होता है। तो बेस्ड ऑन द रिस्क सिलेक्शन हम उसकी प्राइसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से ही जितनी भी रेट्स है वो मेजर होते होते हैं। फिर सेकंड Okay. सेकंड टाइप हो जाती है उसकी डेमोग्राफिक्स, कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो उस हिसाब से भी प्राइसिंग हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एरिया में जहाँ वॉर जोन है, तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी। ठीक है, और जो
वॉर जोन में नहीं, उसकी प्राइसिंग अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। मेन रिस्क सिलेक्शन, नंबर 2 डेमोग्राफिक्स, नंबर 3 एज। ठीक है, तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो डिपेंड होते हैं प्राइसिंग पे। Okay, so the Okay, next sir. question is tell me about a time when you had to use data and analytics to make a major pricing adjustment. What impact did this adjustment have on Park Qatar's business? Yeah. Basically, we mainly use the data analytics when there is a rollover client. There are 3 types of client. Number 1 is the fresh. They didn't take any insurance or takaful coverage previously. They are going to opt first time insurance or takaful coverage. So they don't have the previous claim history or past history. Number 2 is rollover client. They have the past history. They already took the insurance or takaful coverage from any other insurance company or what. Number 3 is the renewal client, a client that already on board on the panel list of Park Qatar. So Park Qatar has the data available. For example, having the claim experience. Uh, Especially if I gave you the example of the group health claim experience, उसमें होता है ऐसे कि ग्रुप हेल्थ में ऑलरेडी क्लेम्स के लिए लोग हॉस्पिटल्स जा रहे होते हैं। ठीक है, और उनसे हमें उनकी कंडीशंस पता चल रही होती है कि क्या मॉर्बिडिटी लेवल है उनका, और उस क्लेम्स की बेस पे हम एनालाइज कर रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर की प्राइसिंग, ये नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं प्राइसिंग। तो ये 3 फर्क है। अगर फ्रेश है तो वहाँ तो कोई है ही नहीं, सिर्फ डेटा है। ठीक है, उस डाटा की बेस पे हमने ऑलरेडी जो मॉडल्स होते हैं वो हमारी अपनी पास हिस्ट्री की बेस पे उससे एक ड्राइव किया होता है रेट फॉर द पर्टिकुलर एज। ठीक है, बट जहाँ पर क्लेम एक्सपीरियंस हमारे पास आ रहा होता है जैसे रोल ओवर में या रिन्यूअल में, तो वहाँ डीपली स्टडी कर रहे होते हैं क्लेम्स को कि ऐसा तो नहीं कोई शॉक क्लेम हो, फॉर एग्जांपल वंस इन ऑल आया हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं या उसकी एक सर्टन प्रोपोर्शन ले लेते हैं नेक्स्ट ईयर की प्राइसिंग में। और उसी वजह से, हाँ सॉरी, आपका दूसरा सवाल था, उसी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्राइसिंग पे। जब आप प्राइस करेंगे, प्रूडेंट प्राइसिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका लॉस मेंटेन रहेगा। अदरवाइज वही लॉस आएंगे तो फिर आपका कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं है। Okay. Okay, so can you please share an example of when you had to balance the competing profitability and customer satisfaction demand when setting insurance prices? ठीक है, बेसिकली अभी हमने रिसेंटली एक क्लाइंट ऑन बोर्ड किया था। ठीक है, मल्टीनेशनल क्लाइंट है। ठीक है, दे अंडरस्टैंड वेल एज कंपेयर टू दी अदर क्लाइंट्स। उनकी प्राइसिंग एक जस्टिफाइड प्राइसिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, और उसका लॉस रेशियो था अराउंड 30%। तो इट मीन 70% इज आर प्रॉफिट। सो जब प्रॉफिट हुआ तो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन कब होती है? सर्विसेज पे होती है, नंबर 1। ठीक है, अगर सर्विसेज उसको अच्छी मिल रही है, ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और वो रिन्यू करने के लिए रेडी हो जाता है फॉर द नेक्स्ट ईयर इजीली। क्योंकि कस्टमर, जैसे ग्रुप की एग्जांपल दी मैंने आपको, वहां पर एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयर के लिए सबसे आसानी क्या है कि जब तक उसके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है, ठीक है, कोई मसला नहीं है उनको सर्विसेज से, फॉर द कोई भी कंपनी हो, चाहे पाक कतर हो या कोई और कंपनी, तो जब तक वो सेटिस्फाइड है तो उन्हें प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन देने में कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है। खासतौर पर आजकल जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उसमें मेजॉरिटी रिटेंशन के प्रॉब्लम हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन के। तो वहाँ पर मैंडेटरी है उनको ग्रुप लाइफ और हेल्थ देना। और वहाँ पे भी अगर सर्विसेज में कोई मसला आएगा इंश्योरेंस की कंपनी की तरफ से, तो ऑब्वियसली क्लाइंट या एम्प्लॉयर स्विच करेगा न्यू कंपनी की तरफ। तो सर्विस इज द मेन पार्ट फॉर द रिटेंशन। Thank you, sir. Okay, sir. So next question is a little bit, I would say. So you have to recount a situation where you had to deal with an underwriting fraud case.
So basically अगर ऐसा कोई केस आता है तो how does Park Qatar investigate, या you being at that position आप उसको कैसे evaluate करते हैं, उसको उसके बारे में कैसे find out करते हैं? देखें, बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रॉड करने के। नंबर वन, अंडर राइटिंग में, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक हेल्थ क्वेश्चन फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय अपनी हेल्थ की कंडीशंस बताता है, रिसेंटली क्या है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें उसको कहा गया होता है कि लास्ट 2 इयर्स में कहीं आपका ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लॉन्ग टर्म है। अगर वो उसमें डिस्क्लोज नहीं करता और गॉड फॉरबिड उसका क्लेम आता है, तो वो क्लेम पेबल ही नहीं है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। और अगर वो डिस्क्लोज करता है तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती है कि फॉर एग्जांपल अपनी हिस्ट्री दे दें या लैब रिपोर्ट्स दे दें, तो जिसकी बेस पे एक एक्यूरेट चार्ज किया जा रहा होता है उसको। नंबर टू, हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, ठीक है, जो ऑन ग्राउंड मौजूद होती है। अगर हेल्थ का है तो वो विजिट कर रही होती है हॉस्पिटल्स को, रैंडमली चेक कर रही होती है कि आया जिस बंदे का क्लेम आया है वही मौजूद है या कोई और बैठा हुआ है उसकी जगह, तो ये चेक हो रहा होता है। नंबर थ्री, जब डेथ क्लेम आता है तो उसमें भी हमारे अपनी इन्वेस्टिगेशंस होती है, ठीक है। सर्वेयर होता है अपॉइंटेड, वो जाता है इन्वेस्टिगेट करता है कि आया वो डेथ हुआ है नहीं हुआ है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्रॉड। नंबर फोर, इसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस में भी सर्वे टीम्स होती है जो जाती है ऑन ग्राउंड पे चेक करती है सारा, और फिर हमें उसकी एक रिपोर्ट देती है जिसकी बेस पे आप कोई भी डिसीजन कर रहे होते हैं। Okay. Philosophy on pricing insurance products. Sorry, can you come again? Yeah. What is your philosophy on pricing insurance products? Sorry, I can't hear. Am I audible? जी, What is your philosophy on pricing insurance products? what is the philosophy of? What is your Pricing insurance. philosophy on pricing insurance product? Yeah, basically, as I said earlier, our pricing is based on the past history of the claims. Pak Qatar is in Pakistan since 2008. So we have from 2008 till 2023, uh, 10 and around 15 years, 17 years, Pak Qatar is in Pakistan. So we have a lot of claim experience with us, the past data with us, and based on that past data, we generate a particular rate for the particular age. So from that and the same rate we built on our pricing models, so that we can do the pricing accordingly. So now the last and a quick question that how do you think the prices are going to be set in future? In keeping the inflation and the GDP impact right now, what do you think will be the I mean, is it a good future related to insurance, or how do you evaluate that being the head of pricing? Yeah, it's very tricky for us. If I give you the example of one of the most prominent hospital, that is Aga Khan University Hospital. Aga Khan has increased around 40% of the rates in last 16 months. So we have to build the certain loadings in our pricing while pricing the for mainly for the group health, because if our Khan is increasing like 40%, so we cannot increase 40% uh, 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 to the client. So we gradually increase the client so that the
client retention and the Park Qatar profitability will remain same, will be in the good condition. So we are working, we are dealing with Aga Khan, but Aga Khan is not ready to reduce its rates. So it's very tough for us. Last 2 weeks back, I was in Japan, where they have the good uh, means they have very good things to cope up with this inflations. They have 0.5% inflation. However, in Pakistan, it's around 25% inflation, medical inflation. So I asked them. So there is a regulator who basically monitor these rates, but in Pakistan it's like. So we have asked the regulator to have this kind of body who look after the rates that hospital is charging. So currently is in discussion phase. So what we did last, that we increased the medical inflation rate uh, from 15 to 20%, and we are charging some loadings, that is contingency margin. So we have applied that loadings in order to cope up with the price inflation. Assalamu alaikum, myself Mariam Samnani. Currently, I am doing accountancy management and laws. As you know, we conduct an interview of an actuary as well. So let's discuss who is actuary. Actuary is a person who possesses such actuarial qualifications as may be prescribed. They analyzes the financial cost of the risk and uncertainty, and they use statistics and financial theory to assess the risk of a potential event, and they help businesses and clients to develop such policies to minimize that risk. Let's discuss the responsibilities. So they are responsible to perform an annual investigations. They certify the charges, expenses of an investment, and they certify the rates of premium at the time of introduction of a new product. They certify the terms and conditions that they are workable or not, and they perform other duties as they are prescribed by the commission. So let's begin with the interview. Thank you. Of yourself that Actually, as Imran already said that I'm a head of actuarial. I have around 11 years experience in the field, and currently uh, my last experience is from RMD Insurance. And recently, 2 years back, I joined Park Qatar. I rejoined Park Qatar. Actually, I already started my career from management training in Park Qatar. Then I left Park Qatar and joined RMD and TPL, and then moved back to Park Qatar 2 years back as a head of actuarial. I am near an associate. okay, sir. Thank you. Okay, now Mariam is going to start with the questions. So I'm hand over to Mariam. Okay, sir. So can you please describe a situation where you had to use your actuarial skills to solve a complex problem for Park Qatar? Actually, every decision making requires actuarial decision in Park Qatar, not in Park Qatar, you can say in every insurance industry. For example, if you have seen some senior resources, for example, in EFU, you know about Muhammad Ali and Zain Ibrahim. Both are very high, highly qualified top management, and they both are actuaries. Same goes to Jubilee Insurance, where Javed Muslim Saab and another one Shan Rabbani. So actuarial is everything in insurance industry because there are a lot of complex decision making requires mathematical calculation as well and mathematical background. So it's not a simple mathematical background. For example, sometimes it's quite complex. Sometimes it's very simple things you require to explain yourself. Projection होती है, future projection होती है. Right. To justify your answer, you need some numbers. Actually, it's always provide you the numbers and justification. Okay, sir. So the next question is, you have to recount a situation where you had to make a difficult decision based on the जो actuarial data आपके पास आता है ना, तो basically आप कैसे एक brief तरीके से बता दें कि आप जैसे risk को कैसे
मतलब एनालाइज करते हैं, या कैसे अंदाजा लगाते हैं कि मतलब ये जो कस्टमर है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और मतलब उस डेटा को बेसिकली आप स्टडी कैसे करते हैं रिजल्ट्स लेने के लिए? देखिए, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आती है। जितना एक्सपीरियंस, द मोर यू गॉट एक्सपीरियंस, उतना ही आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी डेटा को जज करना। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर होती हैं, सिचुएशन के डिसीजन लेना है आपको किसी भी चीज पे कि ये मुझे बिजनेस करना है डिस्काउंट पे या नहीं करना है। लेकिन ऑब्वियसली इसकी हमें एक स्टडी भी होती है, हमारे पास एक अपने नंबर्स भी होते हैं, कुछ एक गट फीलिंग भी होती है। तो उसको देखते हुए हम एनालाइज करते हैं और हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ही होता है। ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो वेरिएट कर सकता है और वेरिएंस होता है हमेशा, लेकिन मोर और लेस वैसा ज्यादा प्रैक्टिकल जो उसका रिजल्ट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर्स पे, ना कि एक मैं रफ एक सिर्फ तुक्का लगा दूं कि ये मेरे जो है डिस्काउंट है मेरी अपनी जज फीलिंग में। तो उससे बेटर ये है कि मैं कोई एक मैथमेटिकल मॉडल बना दूं जो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। रिस्क भी उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। रिस्क का मतलब ये है कि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो निकालूं, मैं एक बेस्ट केस सिनेरियो निकालूं और एक नॉर्मल केस सिनेरियो निकालूं। तो हमारे जो मेनली ऑब्जेक्टिव होता है वो वर्स्ट केस सिनेरियो पे हम देख रहे होते हैं कि कितना रिस्क हम कर सकते हैं मिटिगेट बाद में। तो सर ये मतलब एक Okay. कोई जेनरिक सा मॉडल होता है, या मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी एक सा ही मॉडल फॉलो करती है, या फिर हर कंपनी अपना एक मॉडल देखिए, प्रिपेयर करती है? मॉडल कुछ नहीं होता, आपके ऊपर होता है टेक्निक आप किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, आप किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग सिर्फ गट फीलिंग पे काम कर रहे होते हैं, कुछ सिर्फ नंबर्स के ऊपर एक प्रोजेक्शंस वगैरह दे देते हैं अपनी। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे बोला, हो जरूरी नहीं कि वो प्रोजेक्शन हमेशा सही भी हो, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अजम्पशन पे डिपेंड कर रहा होता है, सारी आपकी डिसीजन मेकिंग अजम्पशन पे डिपेंड कर रही होती है कि मैंने ये अज्यूम किया था, ये सिनेरियो था, इकोनॉमिक सिनेरियो या जो भी वॉट एवर रीजन, उस पर मेरा बेस कर रहा है रिजल्ट। अब अगर चेंज हो गया अजम्पशन तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो मॉडल कुछ नहीं होता, मॉडल एक सिंपल नंबर है टूल। कोई मॉडल कुछ नहीं है। आप अगर कोई समझे कोई मॉडलिंग होती है, हाँ कुछ मॉडल्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो सिंपल एक मॉडल इस तरह से होते हैं जैसे प्राइसिंग का टूल बना हुआ है, इलस्ट्रेशन का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मॉडलिंग की जरूरत नहीं होती, उसमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, वो प्रोजेक्शंस होती है। और प्रोजेक्शंस के लिए कोई मॉडल नहीं होता है प्रॉपर, वो चेंज होता रहता है और अपग्रेड होता रहता है विद योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। Okay. Okay. So, sir, can you please tell us how you stay updated on the latest actuarial developments and apply this knowledge to your work at Park Qatar? देखिए, एसओए के हिसाब से तो हमारी पूरी कोशिश यही होती है। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह से हेल्थ के हमारे रेट्स रिवाइज किए हमने, तो हमारी मॉर्बिडिटी रेट्स वगैरह जो है पहले अपॉइंटेड एक्चुअली हमें देते थे, अब हमने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर देखा एज, और वो हमने अपनी स्टडी जो भी की, तो जाहिर सी बात हमने जो एक्सओए के एग्जाम क्लियर किए हैं और जो हमें आर्टिकल्स मिले हैं सोसाइटीज एक्चुअली से, उसके अंदर हमें पूरे एक मेथड बताया हुआ है कि मॉर्बिडिटी रेट्स वगैरह या मॉर्टेलिटी रेट किस तरह से ड्राइव होंगे। अगर आपके पास डेटा है तो आप उसको खुद से निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसको कितना क्रेडिबिलिटी देनी है। और ये भी एक बहुत मैटर करता है कि जरूरी नहीं कि डेटा आपके पास है और आपने एक रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन वो डेटा इतना लिमिटेड है कि उस पर आपको जो है ना इतना क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, या मिल सकती है, डिपेंड करेगा कितना डेटा, लार्ज साइज ऑफ डेटा है या स्मॉल साइज डेटा है। तो हमने इस पर काफी काम किया है। हमने अपने रेट अपने पोर्टफोलियो पे, बात करता है बिग कंपनी, 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया, तो हमारे पास ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो के रेट्स हैं, वो हमने खुद से ड्राइव किए हैं। और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमें एसएससीपी रेगुलेटर जो हमारे हैं उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको री इंश्योरेंस से जो रेट मिले उसी को देखते हुए उसके आसपास रेट देखने होते हैं। हमने अपने सीट भी किए, लेकिन जाहिर सी बात है वहां पे आ जाता है। लेकिन हेल्थ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हेल्थ में हमारे अपने रेट ड्राइव हुए हैं जो हमने अपनी ही स्टडी पे किए। और ये आपको आर्टिकल्स वगैरह सोसाइटीज एक्चुअली और ये दूसरी इंस्टीट्यूट से भी मिल जाएंगे। ओके Okay. सर। अच्छा सर, एक जनरल क्वेश्चन आपसे ये है, मतलब इट्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू, कि जब आप लोग रेट्स रिवाइज करते हैं किसी भी चीज़ के, आइदर इट बी हेल्थ या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ के, तो हाउ डू यू कन्विंस द कस्टमर? मतलब वो हेजिटेट नहीं करता कि मतलब मैं ऑलरेडी इतना प्रीमियम भर रहा हूँ या मैं भर रही हूँ, तो मैं अब रेट्स को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आप मतलब उनको कैसे इस चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम बाकी चीजों पे तो कन्विंस हो जाते हैं आराम से कि रेट बढ़ गए। मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन आ गई, अब एक गाड़ी पहले अगर 2 लाख की मिलती थी वो 4 लाख की हो गई, तो हम उस पर कभी भी जो है कंपनी को नहीं बोलेंगे आपने 4 लाख क्यों कर दी, मैं तो 2 लाख दे सकता हूँ।
कभी आपने सुनी किसी भी चीज पे XYZ, चाहे वो खाने की चीज हो चाहे उस पर नहीं बोलते, लेकिन जहाँ सर्विसेज पे बात आती है हम बोलते हैं कि नहीं इस पर तो बड़ा डिस्काउंट है। अगर सर्विसेज जो हम दे रहे हैं ऑब्वियसली एक पूरी हमने एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है, इस पे अच्छी खासी वर्कफोर्स काम कर रही है, ऑब्वियसली उनका भी एक इम्पैक्ट है ना। अब क्लाइंट ये बोलता है कि मैंने तो इतने का प्रीमियम दिया इतने क्लेम पे और बाकी पैसे मेरे, मतलब फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता ना। जाहिर सी बात है, अगर हमने एक रन कर रहे हैं या क्लेम प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं उसकी भी तो कॉस्ट होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एजेंट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। अगर वो डिटेल में सही चीजें बता के देखें, आप सर्विसेज पे आप जाएंगे, आप किसी भी प्लम्बर कारपेंटर किसी को बुलाएंगे, अब वो अपने पैसे मांगेगा, अब वो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं यार अभी काम नहीं हुआ तो बिजनेस के आधे कर दो, कोई नहीं करता। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जो गलत परसेप्शन है वो ये कि देखो प्रीमियम मैंने इतना दिया क्लेम इतना है बाकी पैसे मेरे। ऐसा कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब मैं एक पूरी कंपनी रन कर रहा हूँ, इदारा रन कर रहा हूँ। अब ये कन्विंस करने के ऊपर है कि आप किस तरह से कन्विंस करते हैं क्लाइंट। तो मतलब जहां ये जहां मार्जिन बेसिकली होते हैं एजेंट कर रहा होता है, मतलब जो एजेंट। एजेंट कर रहा होता है, बाकी हमें टॉप मैनेजमेंट या हम लोग भी जाते हैं। अच्छा इसके अंदर ये कि जहां मार्जिन होते हैं हम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 1 बिलियन मेरे पास अपफ्रंट प्रीमियम आ रहा है और एक 1 मिलियन आ रहा है क्वार्टर क्वार्टर, मतलब 2.5 लाख 2.5 लाख। तो 1 मिलियन पास जो अपफ्रंट प्रीमियम आ रहा है उसमें मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसमें मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा 5 to 10%। तो वो डिस्काउंट मैं पास ऑन कर सकता हूँ। मतलब क्लाइंट जाहिर सी बात है मैं वही चीज दे सकता हूँ जिससे मुझे फिजिबिलिटी मिले, उसके अलावा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मिली किसी भी कंपनी को चलाना। That's it. ओके, एक मुझे क्वेश्चन करना था। माइक्रो फाइनेंस के साथ आप लोगों ने जो है वो कोलैबोरेट किया है, तो उसके पीछे एम या फिर मोटिव? मैं बताता हूँ। असल में पाकिस्तान के अंदर यूनिट लिंक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है इन्वेस्टमेंट का। हर कोई लेना चाहता है कि मेरे पैसे अगर एक साल में मैं 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो 20 साल बाद कितने हो जाएंगे। कोई ये बात सुनना नहीं चाहता कि मुझे जो है डेथ पे कितने पैसे। उस समय बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है जो गलत है। अगर आप यूएई में जाएंगे, मिडिल ईस्ट में, बाहर कहीं पे भी जाएंगे, वहां पे मार्केट में नॉन यूनिट लिंक से मुराद ये कि लाइफ इंश्योरेंस जो मेन कोर है वो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है कि डेथ बेनिफिट क्या है। वो माइक्रो इंश्योरेंस से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि स्मॉल टिकट साइज होता है, यूनिट लिंक होता नहीं, इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट नहीं होता। तो एक तो स्मॉल टिकट साइज हो गया और दूसरा वो प्योर इंश्योरेंस का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग इस तरह से अभी नहीं हो चुके हैं एजुकेट, वो समझ सकें कि इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस होता है। वो अभी भी आपसे ये बोलेंगे कि मुझे अब 5 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे। हालांकि वो अगर हमको करना है तो वो फिर इन्वेस्टमेंट में करें, अलमिजान इन्वेस्टमेंट या पाक कदर की एमसी अपनी है, वो ज्यादा ऑप्शन के लिए बेटर है। उनको पैसों के लिए करना है बैंक्स में जिसमें भी करें whatever। लेकिन वो इंश्योरेंस को एज ए टूल यूज कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट। तो माइक्रो इंश्योरेंस में हमारे जाने का मकसद ये था कि हम लोगों को ये बता सकें कि भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी जो है ना वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है और यही रेगुलेटर भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस ही बेचे हम। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा ओके सर, एक एक क्वेश्चन रिगार्डिंग री इंश्योरेंस। मतलब एक तो पहली बात ये पाक कतर री इंश्योरेंस कहाँ से करवाती है और उसका प्रोसीजर क्या है, और दूसरा ये कि आप लोगों का जो पाक कतर है उसका मेन प्रॉफिट कहाँ से आता है, मतलब लाइक इज इट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट लाइक यू से एनी सेक्टर, या फिर वो किस तरीके से आप लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं? ठीक है, ये दो अलग अलग सवाल है। पहले तो मैं री इंश्योरेंस पर जवाब दूं। री इंश्योरेंस में एसएससीबी की रेगुलेशंस आई हुई कि आपको A++ या B- आई गेस, आप उसको वेबसाइट पे चेक कर सकती हैं कि उससे कम की रेटिंग की आप री इंश्योरेंस नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई री इंश्योरेंस इस काबिल नहीं है या है ही नहीं अभी अवेलेबल कि हम री इंश्योरेंस दें, तो हमें बाहर से ही करवानी पड़ती है। पाक कतर क्योंकि तकाफुल ऑपरेटर, तो हमें री तकाफुल ऑपरेटर ही ढूंढने पड़ते हैं। वो इस वक्त 2-3 ही आपको मिलेंगे, जैसे म्यूनिक री है, नोवा री। उन सबसे हमारी जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप था। हमने इंडिविजुअल के लिए ग्रुप के लिए अलग अलग से कराई हुई है। अब रही बात दूसरी सवाल जो आपकी बात कर रही है प्रॉफिट की। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से भी आता है बिल्कुल, और अंडर राइटिंग प्रॉफिट भी आता है। अंडर राइटिंग प्रॉफिट वही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्लेम माइनस प्रीमियम माइनस क्लेम। उसके बाद जो हमारी एसएचएफ से वकालत होती है, एसएचएफ से मतलब शेयर होल्डर, वही बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है हमारी, जिसपे क्लाइंट का और हमारी बहस ये होती है कि ये तो नहीं वेव होनी चाहिए। तो दोनों फैक्टर से आ रही होती है, लेकिन फिल वक्त क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें इससे ज्यादा मतलब प्रॉफिट मिल रहा है।
एज कम्पेयर टू अंडर राइटिंग प्रॉफिट, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। बहुत सारी कंपनीज जो है इस चीज को फोर्सी नहीं कर रही और वो अंडर प्राइस कोट करती हैं, बाद में लॉस इनकम करती हैं। क्लाइंट जाहिर सी बात है, एक चीज मैं 10 की दे रहा हूँ, दूसरे 8 की दे रहा है, तो वो 8 के ऊपर ही जाएगा, उसकी गलती नहीं है क्लाइंट की इसमें। लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसको इस बात सोचना चाहिए कि क्या वो सस्टेन कर सकती है लॉन्ग टर्म में, शायद नहीं कर पाए, शॉर्ट टर्म में शायद बिजनेस ग्रो कर लेंगे, प्रीमियम आएगा, आता रहेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी ना कभी वो बलून फटेगा, क्लेम इतने ज्यादा हो जाएंगे, प्रीमियम कम हो जाएगा। कुछ कंपनीज के साथ ऐसा हुआ भी है, फॉर एग्जाम्पल ईशा केयर की आप मिसाल ले सकती हैं। 2015 2016 में उनका बिजनेस बढ़ता रहा, क्लेम उससे ज्यादा बढ़ते रहे, फिर बिजनेस और बढ़ गया, तो वो एक साइकिल चलती रही। लेकिन एक वक्त आया, प्रीमियम कम हो गया, क्लेम के लिए पैसे नहीं बचे, वो डिफॉल्ट हो गया। तो लॉन्ग टर्म पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि हम शुरू में प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल ये है कि अभी जो है ना वो SCCP का कोई 5 year प्लान आया है फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, बिल्कुल, तो वो इंश्योरटेक के नाम। जी, तो वो मतलब उसका पाक कतर पे क्या इम्पैक्ट है, या हाउ इज पाक कतर परस्यूइंग दैट? अभी उसका सेमिनार स्टार्ट हुआ है, अभी 2 दिन अभी, तो अभी उस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, तो अभी मैंने उसमें खुद गया नहीं हूँ, तो अभी चल ही रहा है, वो इस वीक ही है। आई मीन व्हाट इज योर इनसाइट के मतलब वो मतलब एक बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, वो किस उसका एम क्या है? डिजिटल इंश्योरेंस पे टेक्नोलॉजी पे जाना चाह रहे हो, और मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि क्लाइंट जितना ज्यादा एजुकेट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली वही जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइंट को पता नहीं होता कि प्रोडक्ट क्या चाहिए उसको। जितना टेक्नोलॉजी पे आएगा, जाहिर सी बात है उसको ज्यादा पता भी चलेगा, इन्फॉर्मेशन भी उसको। एजेंट जो है, जाहिर सी बात है, अगर एजेंट कोई भी चीज बेचता है तो उसको कमीशन मिल रहा होता है, और कमीशन जब मिल रहा होगा तो वो अपने फायदे के लिए झूठ भी बोलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, जिसकी वजह से हमें फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑम्बुड्समैन वगैरह के ऊपर के, ये तो मुझे तो ये कमिटमेंट हो गई, और फिर बाद में जो है ना ये चीज निकली। तो SCCP की जो हमारे वसीम खान साहब हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको जितना मिनिमाइज कर सके और जितना ज्यादा क्लाइंट एजुकेट हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ही पूरी इंडस्ट्री चल रही है। अब जिस तरह से बाहर के मुल्कों में, बाहर तो खैर बहुत आगे निकल गया, अब ये भी चाह रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो है ना हम सब कुछ ऑनलाइन पे ले आए, और काम चल रहा है इसके ऊपर का। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसको टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा निकाल 5 साल के अंदर स्पेशली ये अंदरूनी सीना अंदरूनी पंजाब हो सकता है ये चीज, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस यहीं से है हमारे पास। ठीक है सर, तो अच्छा एक लास्ट सवाल ये इस हवाले से कि मतलब अगर दो इंश्योरेंस कंपनी है टेकिंग पाक कतर एंड एनी अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो व्हाई विल अ क्लाइंट चूज पाक कतर? मतलब क्या आप लोग की कुछ इस तरीके के देखिए बेनिफिट्स हैं, या प्राइसिंग में फर्क है, या इंसेंटिव्स अच्छे हैं, किस तरीके देखिए से मैं पाक कतर को चूज करूं? देखिए, हम हैं सर्विस प्रोवाइडर, अगर हमारी सर्विस अच्छी होगी तो यकीनन लोग आएंगे। ये मिसाल बिल्कुल आप ऐसी बात करेंगे कि एक मैकडोनल्ड है और एक KFC है, दोनों को अब चूज क्लाइंट करेगा, एक तो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, हम्म, दूसरा प्राइसिंग पे फर्क है दोनों का, लेकिन वो क्वालिटी है उसको देख रहा होता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपको आधा कोड भी कर रही होती, इन क्लाइंट के पास नहीं जाते, क्योंकि उनको पता क्लेम पे नहीं, या क्लेम रिजेक्शन इतनी ज्यादा होगी, या सर्विस नहीं मिलेगी मुझे क्लाइंट। पाक कतर की गुडविल बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली ये फ्यूज क्लीन की भी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली ये टॉप 3-4 कंपनी है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। ठीक है। ओके सर, लास्ट सवाल जो कि सबसे मेन है वो इस तरीके का है कि जैसे अभी आपने बोला कि जो इंश्योटेक आ रहा है तो वो सारा कुछ ऑनलाइन पे जा रहा है। अब जो बेसिकली लोग कराची में रहते हैं वो तो कुछ एजुकेटेड हैं कि उनको इंश्योरेंस के बारे में पता हो, बट जो रूरल एरियाज हैं जैसे जो गांव देहात के लोग हैं, उनके लिए आप लोगों का क्या इनिशिएटिव है? मतलब जैसे उनकी अगर फसलें वगैरह हैं, तो आप उनको जाके कैसे एजुकेट करेंगे कि भाई मतलब दे शुड आल्सो परचेज इंश्योरेंस, कि उनका लैंड और जो भी उनकी चीजें हैं वो सिक्योर हो जाए। तो रूरल एरिया की देखिए, तरफ व्हाट इज द इनिशिएटिव फ्रॉम पाक कतर? अभी फसलों के ऊपर तो मैं इसलिए जाऊंगा, क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर पाक कतर तो खैर अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने काम किया था उनको ठीक ठाक लॉस हुआ है। अभी जो सैलाब वगैरह आया था लास्ट ईयर, हम्म। 2 साल पहले जो है, की वजह से बहुत सारी कंपनीज को सिवियर लॉस पहुंचा है, क्योंकि हमारी जो कैटेस्ट्रॉफिक कवर की लिमिट थी, जो मुझे पता चला उन लोगों की, वो कभी हिट ही नहीं करी। लेकिन एक अच्छा। चीज होती है हमारी लिमिट, और एक होती है कैट कवर। कैट कवर ये होता है कि इससे बियॉन्ड कोई लॉस चलाएगा तो वो री इंश्योर देगा। अनफॉर्चुनेटली वो उसके मिड ऑफ द उसमें कहीं फंस गए, तो कंपनी को ही पे करना पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा लॉस जो है वो आदमदी जनरल को हुआ था। तो क्रॉप वगैरह पे काम करने की जरूरत है, लेकिन
पहले हमें शायद इसको मिच्योर भी करना है प्रोडक्ट को, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल हमारी प्रोडक्ट इतनी मिच्योर है कि हम उसको अभी सेल कर सकें किसी भी किसान को या किसी भी उसको, क्योंकि अभी जो हमें लॉस हुआ है जैसे सैलाब पे या उस पर, अब ये तो आएंगे आगे भी। और जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में है कि टॉप 5 पे नाम है शायद जो है क्लाइमेट उसके ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी इम्पैक्ट आएगा तो उसको भी एनालाइज करने की जरूरत है, उसके ऊपर फिर सही से एक स्टडी हो सकती है। इसमें सबको एक कंसेशन करने चाहिए और एससीसीपी को कोई बॉडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो कोई कंपनी कुछ। तो सर अगर चलें, अगर हम क्रॉप्स वगैरह को एक साइड रखें, वैसे भी जो रूरल एरिया वाले होते हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस का भी इतना नहीं आइडिया होता, मतलब वो नहीं इन चीज़ों में इतना इन होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से या जनरल इंश्योरेंस के हवाले से आप लोग कैसे मतलब रूरल एरियाज को देखिए टारगेट करते हैं? हमारी हमारी जो कोशिश होती है हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं। हमने डीएसएफ के अंदर 2 प्रोडक्ट बना दिए, डायरेक्ट सेल्स फोर्स जिसका एजेंट का मतलब है। उसके अंदर एक तो हमारी यही है जो जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि जिसको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, डेथ बेनिफिट चाहिए, उसके लिए एक अलग प्रोडक्ट चल रही है। एक हमारी चल रही है इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट जो है महाना बचत इसकी, वो अलमीजान इन्वेस्टमेंट या आपको बाकी की जो जिस तरह की प्रोडक्ट मैं अभी बात कर रहा था, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमने बना दिए। अब जाहिर सी बात है हम दोनों ऑप्शन दे देते हैं। अभी एससीसीपी ने हमें ये बोला है कि एक उन्होंने प्री सेल्स के ऊपर एक डिफाइन कर दिया कि आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या आप इंश्योरेंस चाहते हैं। अब क्लाइंट जाहिर सी बात है जो भी बोलेगा हम उसी हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफरिंग करते हैं। ये एससीसीपी की तरफ से हमारे पास 1 साल पहले सर्कुलर आ चुका है और उसको हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जाहिर सी बात है उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। अब जाहिर सी बात है हम उधर होते नहीं है, एजेंट होता है। अब एजेंट अगर इसमें कुछ कर दे तो अभी हम इस पे नहीं कर सकते चेक एंड बैलेंस, आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज भी रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। इसमें ऐड कर दूं मैं पॉइंट, जब कोई भी पॉलिसी सेल आउट हो जाती है तो उसके बाद कॉल बैक सर्विस होती है। उस कंपनी हेड ऑफिस से उस क्लाइंट को कॉल जाती है, जिसमें वो जो भी उसने फिल किया है फॉर्म्स वो उससे रीवैलिडेट कराया जाता है कि ये है ये है ये, तो इससे चेक हो जाता है कि क्लाइंट का कॉन्सेंट भी इस बात पे है, उसको पता है कि नहीं। वो उसके अंदर सब और वो होता है कल अगर एससीसीपी हमसे मांगना चाहे तो हम उनको दे भी देते हैं, और वो रिकॉर्डेड कॉल होती है। लेकिन बात वही है कि एजेंट अगर कोई गांव देहात का मतलब क्लाइंट है तो उसको बोलता है कि बस वही बोलना जो मैं बोलूं, उस चीज को तो अभी कोई भी सही नहीं कर सकता, वो तो हमेशा रहेगा ही। तो मतलब आप लोग इसकी तरफ कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं कि मतलब हम रूरल एरियाज को ज्यादा से ज्यादा, हमने तो मतलब कि कोई रिकॉर्डेड प्रॉपर कॉल जैसे टीम हो या कोई प्रॉपर मतलब एक टॉप मैनेजमेंट से बंदा हो जो अलोंग विद एजेंट या टीम जाए प्रॉपरली एजुकेट करने के लिए रूरल एरियाज वालों को, ताकि उनको पता चल सके कि भाई व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस या इसके क्या बेनिफिट्स हैं या कैसे फ्यूचर में ये आप कॉल लोग के लिए या करते आपकी रहते फैमिली हैं। के लिए बेनिफिशियल है। तो इसके लिए हमने अब कॉल करना शुरू कर दिए जो हमारे क्लाइंट भी हैं उनको भी, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट पे कन्वर्ट वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से जाती है जाहिर सी बात। लेकिन आप इनिशियल पे एजेंट ही होता है इन्वॉल्व, तो उस वक्त तो हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होता है उस क्लाइंट को मिलने का, लेकिन जब हमारे पास आ जाती है तो हम उसको भी, क्या आप अपने फैमिली मेंबर है किसी को कुछ चाहिए तो हमारे पास ये ऑफरिंग से आप ये ले लें, वो ज्यादा आपके लिए फिजिबल रहेगा जो आपने प्रोडक्ट। ओके अच्छा, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इस हवाले से कि जो बैंक इंश्योरेंस होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, और दूसरा एक आई थिंक इट्स अ मिथ या पता नहीं इस तरीके से होता है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप कोई सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराते, फॉर सपोज इफ पाक कतर इज एसोसिएटेड विद एनी बैंक जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, तो क्या पैसे डिपॉजिट करने पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर की जाती है, या अगर आप एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट मतलब बैंक में रखवा रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो वो आपको बैंक इंश्योरेंस उसमें इंक्लूड होती है या किस तरीके से वर्क करता है? लेकिन 2 अलग प्रोडक्ट है, एक होती है बैंक जो है ना खुद अपने जो भी उसके डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए हमसे बोलता है कि मेरे पास 1000 कस्टमर है या 1 लाख कस्टमर है, उनका ये अमाउंट है, आप इतने की इंश्योरेंस ऑफर कर दें, तो हम उनको एक ऐसा ग्रुप रेट दे देते हैं उसके ऊपर, और वो बैंक दे रहा होता है अपनी जेब से, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो करंट अकाउंट में पैसे रखे होते हैं रिटर्न तो दे नहीं रहा होता, तो रिटर्न के पैसों से ही कुछ वो अमाउंट हमें दे देता है, हम उनको डेथ कवरेज दे देते हैं, और वो ऑफर ये करते हैं कि आप करंट अकाउंट में पैसे रखें, हमारी एक प्रोडक्ट पहले चल भी रही थी एच बिल से करंट अकाउंट के नाम से, तो उसके अंदर आप करंट अकाउंट पैसे रखें 1 मिलियन, आपको 1 मिलियन तक की कवरेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, डेट यूटिलिटी कॉस्ट। ये एक अलग प्रोडक्ट है। अब आई बैंक का इंश्योरेंस, बैंक का इंश्योरेंस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह से हमारी डायरेक्ट सेल्स फोर्स करती है, वो एज एजेंट ही काम करता है, बस फर्क ये है कि वहां पे ऑलरेडी क्लाइंट उनके पास आता है,
क्लाइंट है, डिपॉजिटर्स है उनके, उनको कोई भी उधर जो बैठा होगा बैंक मैनेजर या XYZ, वो बोलेगा कि मेरे पास ये ऑफरिंग्स है, आप लेना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है वो भी करेगा जो भी है, फिर तो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे उसके अकाउंट से, और पैसे फिर पाक कतर के वाले हैं, पाक कतर वही सिमिलर काम करेगा जो एजेंट कर रहा है। बस फर्क है कि यहाँ पे एजेंट जो कैश या चेक लेके आता है, वहाँ पे बैंक के थ्रू डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट ज्यादा है, आसान ईजी है हमारे लिए। अच्छा सर, आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट, तो वहाँ पर एक चीज है ATM विड्रॉल इंश्योरेंस या तकाफुल इस तरीके से। तो आई मीन दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, मतलब मैंने पहले जगहों पे ये नहीं देखा या आई वाजंट अवेयर अबाउट दैट। तो ये किस तरीके से वर्क करता है? एक्चुअली ATM विड्रॉल पे मेरे ख्याल से वो वही स्नैचिंग वाली है नहीं, स्नैचिंग के ऊपर ये क्योंकि जनरल की प्रोडक्ट है, पहले बनी थी, इसका मैं पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि इसके अंदर क्या, अगर आपने पैसे निकाले और आप 5 मीटर या उससे उसके 25 मीटर के आसपास है, कैमरे लगे होंगे, और कोई आपसे इस तरह से कुछ छीन लेता है पैसे, तो आपको वो कवरेज मिल जाएगी एक सर्टेन अमाउंट तक। मिलान बैंक के ऊपर शायद हम ये ऑफर कर रहे हैं, जो सर्टेन अमाउंट 20-25 हजार ही होती है, 30 हजार तो कटते नहीं है। नहीं, एक तो ये सर्टेन तो बहुत अमाउंट रिस्की है, मतलब इसमें तो बहुत हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड है। मतलब अगर कोई वो होती मतलब बात है अपने ही ना, उसमें से करवा ले तो। नहीं देखें, उसमें फिर FIR वगैरह रिक्वायरमेंट्स होती है। रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ना, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, एक सर्टेन वो होता है सरकमफ्रेंस, उससे बाहर निकलेगा तो डिस्टेंस से बाहर तो अलाउ नहीं है, वो डिस्टेंस ही इतना होता है कि बैंक है उसके आसपास का, और अक्सर जब बैंक के आसपास गार्ड वार्ड कोई ना कोई तो होता ही है, मतलब ठीक है, मतलब कभी ना कभी रात में नहीं होते तो समझ में आती है कोई अंदर घुस गया, अब वो तो, लेकिन बहुत कम ही चांसेस होते हैं इस तरह के केसेस में। अब मैं चला गया, मैं घर जाके अगर कुछ छीन लिया, वो तो नहीं मिलेंगे बस। और एक और चीज भी है, देखिए प्रोडक्ट वायबल उस वक्त रहेगा जब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। अगर एक तरफ से फ्रॉड होता रहेगा तो वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, वायबल नहीं रहेगा। तो पैसे छीन लें, उसका कोई प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं है हमारे पास, बैंक के पास अक्सर कैमरे लगे होते हैं, तो एविडेंस होता है कि अगर किसी ने छीना है तो उसी बेसिस पे हम बिल कवरेज दे रहे ओके, तो अब लास्ट ये कि आप कोई ऐसा केस रिकॉल कर सकते हैं जो मैं आई मीन पाक कतर ने फेस किया हो, जो यू थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो, या कोई इंटरेस्टिंग बात इस तरीके से पाक कतर के हवाले से जो आप शेयर करना चाहें, या रीसेंट डेवलपमेंट जिस पे पाक कतर काम कर रहा हो। क्लेम पे क्योंकि क्लेम का ज्यादा इमरान लखानी देख रहे होते हैं, अप्रूवल वगैरह भी होता है, ये आपको सही से गाइड कर सकते हैं कि क्या। देखिए जैसे रीसेंट डेवलपमेंट की आप बात कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एसेट मैनेजमेंट, जो मैंने आपको लिंक किया कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च हुई है और उसके प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जो कि माशाल्लाह पूरी इंडस्ट्री में एक पहले में माना बचत स्कीम के नाम से, ठीक है। तो ये हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, जो पाक कतर को भी इनहेंस कर रही है, ठीक है, एज अ ग्रुप। नंबर 2 जो क्लेम्स के हवाले से हैं, उसमें CC पोर्टल है एक, ठीक है, एक जॉइंट पोर्टल है अमंग द इंश्योरेंस कंपनीज, जो CDC की तरफ से, सेंट्रल डिपॉजिटरी की तरफ से, जिसमें क्या होता है कि एक सर्टेन लॉस रेशियो आता है, ठीक है, 1000 लाइफ के ऊपर, मिसाल के ऊपर कोई कंपनी 90% प्लस लॉस रेशियो दिया, तो वो हमें वहां रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि बाकी कंपनी अवेयर हो जाए, ठीक है, कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से करे। तो ये एक दो मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो एसेट मैनेजमेंट और ये एक पोर्टल का, कि जो कि बहुत जरूरत भी है। अच्छा, ओके सर, एक सवाल ये कि ऑनलाइन अगर इंश्योरेंस करवानी हो फॉर सपोज पाक कतर से, तो आप लोग उसके लिए कोई प्रॉपर चैनल है या इट्स ओनली थ्रू एजेंट? मतलब अभी पाक कतर का ऑनलाइन कोई सिस्टम है फॉर एनीवन हु नीड्स टू गेट इंश्योरेंस, या फॉर सपोज किसी को अपने मदर की करवानी, किसी करवानी? फैमिली सेहत के लिए, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए, इंडिविजुअल हेल्थ फैमिली सेहत हमारा एक प्रोडक्ट है हेल्थ का, उसके लिए है। अभी यूनिट लिंक पे SSB की तरफ से खुद ही एक रेगुलेशन आई हुई है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, तो उसकी वजह से हम यूनिट लिंक ऑफर नहीं करें इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट, लेकिन इसी तकाफुल और हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पर्सनल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल हेल्थ, तो मतलब आप ऑनलाइन आप ले सकती ऑनलाइन, हैं और उस पर डिस्काउंट भी है। ठीक है, मतलब बिल्कुल, इट्स बेसिकली उस थ्रू पे पाक ये है कि कतर आप वेबसाइट ना, आप वेबसाइट पे गए एंड यू लॉग इन उस इस पे तरीके डिस्काउंट से। भी आपको मिलेगा, कमीशन जाहिर सी बात है उसको हम नहीं दे रहे एजेंट को, तो डिस्काउंट आप ही को पास ऑन हो जाएगा। और वरना कोई भी आप सेंड भी कर सकते हैं, वो क्वेरी आ जाती है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। ये ऑनलाइन का मतलब ये है कि वेबसाइट पे ऑलरेडी है तो हो रहा है, ऐसा नहीं है,
उस पर आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो आप देख सकती हैं, इस पर लिंक भी दिया हुआ है पाकतर की वेबसाइट पर। फैमिली सेल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको कॉल बैक आएगी, फिर वो पूछेंगे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर पेमेंट वगैरह का पूरे प्रोसेस है। Thank you so much, sir, for your time. The questions are end from our side. Or inshallah, we're going to make a documentary and share